بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 180 آج کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الاصول التنزیلیۃ والمحرزۃ سے لے کر مورد جریان الاصول العملیۃ تک وضاحت کی جائے گی کہ کسے کہتے ہیں، کون سے اصول تنزیلیہ اور محرزہ ہیں۔ نمبر 2، اصول تنزیلیہ اور محرزہ کی پھر یہاں پہ دو صورتیں ہیں، یعنی جن کے دو تصورات ممکن ہیں، ان تصورات کا بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الاصول التنزیلیۃ والمحرزۃ، اصول ایک ہیں تنزیلیہ، یعنی وہ اصول جو نازل بے منزل یقین ہیں، جن کی وضاحت آ رہی ہے۔ محرزہ وہی، یہ عطف تفسیری ہے، وہی اصول تنزیلیہ جو اصول محرزہ ہیں۔ ملاحظہ فرمائے طلاب کرام عزیز کہ اصول عملیہ شرعیہ جو کہ اصول عملیہ عقلیہ کے مقابلے میں تھے، اس لحاظ سے کہ احکام واقعی کی جانب نگاہ رکھتے ہیں، یعنی کاشف حکم واقعی ہیں، اس لحاظ سے ایسے اصول عملیہ شرعیہ کی تقسیم دو قسموں کی جانب ہوتی ہے۔ ایک کا نام ہے اصول عملیہ غیر تنزیلیہ یا غیر محرزہ، جو کہ اس کے مقابلے میں ہیں۔ یہ کون سے ہیں اصول تنزیلیہ، اصول عملیہ شرعیہ غیر تنزیلیہ یا غیر محرزہ؟ یہ وہ اصول عملیہ ہیں جن کے بارے میں شارع حکم لگاتا ہے بغیر اس کے کہ کاشف واقع ہو۔ اصول عملیہ کا کام ہے کہ تنجز یعنی معذریت و منجزیت لائیں ان مقامات پہ جہاں پہ مکلف کو شک ہو، مثلا اصالت بات و احتیاط وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ، اچھا اس سے بے سواری نہیں ہے، بے سواری ہے دوسری قسم، یہ جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں اصول تنزیلیہ اور محرزہ یا محرزہ۔ اچھا یہ کیا ہیں؟ یہ وہ اصول عملی ہیں جن کے بارے میں شارع حکم لگاتا ہے اور ان میں کسی حد تک کشف واقع بھی ہوتا ہے، منجزیت اور معذریت کے علاوہ، البتہ ان مقامات میں جہاں پہ شک ہو، مثلا اصالت الاستاب میں شک سابق، یقین سابق شک کے لائق ہوتا ہے۔ کشف واقع عنایت زائدہ اور عنایت اضافی چاہتی ہے، جس کی تفسیر دو صورتوں میں ممکن ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ الاصول العملیۃ الشرعیۃ تارتاً، ایک دفعہ اصول عملیہ شرعیہ تکون مجرد وظائف عملیۃ، ایک دفعہ فقط مکلف کے مقام حیرت عمل میں ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے لیے حکم واقعی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک وظیفہ عملی اس کے لیے مقرر کرتے ہیں بلسان انشاء حکم تکلیفی ترخیصی او الزامی، وہ اس زبان میں کہ انشاء کی زبان، یعنی انشاء حکم، جعل حکم کی زبان وہ حکم تکلیفی ترخیصی ہو یا الزامی ہو، بدون نظر بے وجہ الاحکام الواقع، نگاہ نہیں ہوتی ان کی کہ احکام واقعی ہیں یا احکام واقعی نہیں ہے، فقط ان کی یہ کہ مکلف کے لیے مقام عمل میں حکم تکلیفی ترخیصی یا الزامی کو جعل کیا جائے۔ وَهَذِهِ اصول عملیۃ بحتۃ، ان کا نام رکھا گیا ہے اصول عملیہ بحتہ۔ وَأُخْرَى تارةً برفت تبذل فيها عنایۃ اضافیۃ، کچھ اصول عملیہ شرعیہ ایسے ہیں جن میں یعنی اضافی بذل کی ضرورت ہوتی ہے، عنایت اضافیہ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ تطعم بالنظر الی الاحکام الواقعہ، چونکہ ان کا نگاہ ٹکی رہتی ہے احکام واقعہ کی جانب، یعنی یہ کاشف واقع ہوتے ہیں۔ وہذہ العنایۃ،
युमकिनु तस्वीरा बेवजन, ये है, ये तुबजुल फी इनायत इजाफी इस्तिताम बिनज़र अल हकम अल वाक़ियत, ये उसूल तंजील मुहर्रदा हैं। ये इनायत यानी इनायत इजाफिया जिसकी बिना पे उनकी निगाह काशिफ वाक़े की जानिब हो, युमकिन तस्वीरा बेवजहन, ये दो सूरतों में मुमकिन हो सकती है, उनका बयान ये है। अहदुहुमा, पहली सूरत यह है कि युजअल अल हुक्म ज़ाहिरी बिलिसान तंजीलिही मंजिलत अल हुक्म अल वाक़ई। पहला तरीका यह है कि हुक्म ज़ाहिरी को करार दिया जाता है बिलबंद इस जबान में कि ये हुक्म ज़ाहिरी नाज़िल बेमंजिल हुक्म वाक़ई है। अच्छा, हुक्म वाक़ई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कायम मकाम नाज़िल बेमंजिल हुक्म वाक़ई है। कमा का युकालो, मसला इसकी मुलाज़ा फरमाए, युकालो फी असालतुल हिल्ल, देखिए असालतुल हिल्ल यानी कुल्लु शैइन हलालुन हत्ता तअलम अन्नहु हराम, व असालत तहारते, असालत तहारत में भी है कि कुल्लु शैइन ताहिर हत्ता तअलम अन्नहु नजिस, ये इसमें कहें इस चूंकि युस्तज़हरु अन्ना कौलहु कुल्लु शैइन लक हलाल, जो कि बिनाए कायदे इस असल हिल है, और कुल्लु शैइन लक ताहिर हत्ता तअलम जो कि असल तहार की बिना है, ये सदर कि ये कौल, ये तकफ़लो, ये अकवाल, ये अदिल्ला जिम्मेदारी रखते हैं, खुद कफीलेंगे तंजील अल मशकूक हिल्लियते, कि जहां पे हमें पता नहीं कि ये हलाल है या हराम है, वहां पे क्या कहते हैं, वो मशकूक जो है उसको कायम नाजिल मंजिल करा दें। वो मशकूक को तहरत है, जहां पता नहीं ये पाक है, ये कमीज पाक है या नजिस है, वहां पे इन दोनों को नाजिल मंजिल करते हैं मंजिलतल हलाल वाक़ई, कि उसको कहते हैं कि ये वाक़ियत में हलाल है। अब फर्ज करें गोश्त अरनब के बारे में फर्ज कर लेते हैं, हमें पता नहीं खरगोश का गोश्त हलाल या हराम है, तो कायदे हिल जारी करके हम कहते हैं कि ये नाजिल बेमंजिल हुक्म वाक़ई के हलाल है। और कमीज की मिसाल जी कि नाजिल बेमंजिल तहारत वाक़ई है, खिलाफन लिमा यक़ूल, बरखिलाफ उसके जो कहता है कि इन्न दलील हाज़ैन अल अस्लैन लैस नाज़िरन इल वाक़ई, ये दो असालतुल हिल की दलील कुल्लु शैइन लक हलाल, असालत तहारत की दलील कुल्लु शैइन लक हत्ता तअलम, ये बाज लोग कहते हैं कि ये दोनों दलीलें, दोनों उसूल की असालतुल हिल और असालत तहारत की जो दलील है, इसकी निगाह वाक़े की जानिब नहीं है कि ये वाक़े को मोहरज करने के दर पे हों, बल युनशअ बिनफ्सिही हिल्लियतुन और तहारतुन बिसूरतिन मुस्तक़िल, बल्कि इनके जरिए से ज़ातन हिल्लियत को और तहारत को बतौर मुस्तकिल इंशा किया जाता है, अक्स किया जाता है, बगैर बिदून इसके के इनकी वाक़े की जानिब निगाह हो। व युसम्मल अस्ल फी हालत बदल हादिह इनायत तंजीलियत बिल अस्ल तंजीली, इस असल का जो इस नाज़िल बेमंजिल हुक्म वाक़ई है, इसको कहा जाता है अस्ल तंजीली। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फायदा क्या है कि आप हुक्म ज़ाहिरी को नाज़िल बेमंजिल हुक्म वाक़ई करा दें। वक़्त फरमाते हैं बिल्कुल फ़वायद हैं इसके, वक़्त तरत्तब अला हाज़िही तंजीलते, हाज़िही तंजील यानी हुक्म ज़ाहिरी को नाज़िल बेमंजिल हुक्म वाक़ई करा देने के मुतरत्तब फ़वायद, चंद फ़वायद। मसलन उनमें एक इराक़ीला, अगर कहा यूं कहा जाए कि बेअन्न अस्ल लिबाहत तंजीलियुन, के असल इबाह है, असलतुल इबाहत ये तंजीली है या नाज़िल बेमंजिल इबाह वाक़ई है, तो फिर तरत्तब अलैहि, तो फिर इस पे फ़ायदा मुतरत्तब होता है हीन तत्बीकी अलल हैवान है, मसलन या तरत्तब अलैहि हीन तत्बीक अलल हैवान, जब आप इसको असल इबाह के हैवान पर फर्ज करें अरनब पर खरगोश पर तदबीक करते हैं, तो इस पर मौकूफ होता है मसलन तहारतो मदफूअतिन ज़ाहिरन, के इसका मदफू यानी फर्ज करें बौल पेशाब पाक है, फर्ज करें गोश्त ठीक है कि उसका है। अब अरनब के जब अरनब खरगोश है उसके मदफू के बारे में हमें शक होता है कि मदफू इसका पाक है या नजिस है, असालत फिर हो गया पाक है, ये फायदा है। अगर हम हुक्म ज़ाहिरी को नाज़िल बेमंजिल
हुक्म वाक़ी करा दें। क्यों? लिअन्ना मुतरत्तिबुन अला हिल्लियत वाक़ियत है, चूंकि ये मौकूफ है या तहारत मदफू वाक़ के वो वाक़े और नफ्स और उनमें उसका गोश्त हलाल हो तब। अच्छा, ये कायदा है कि जिसका गोश्त हलाल उसका पेशाब व पायखाना भी पाक होता है। ये अगर एरनब को हिल्लियत वाक़ई फर्ज करते हैं तो इसका जो तहारत पेशाब व पायखाना भी है, वह ये साबित है तंजीलन फ़क़ज़ालिकुमा, ये हिल्लियत वाक़ई साबित है नाज़िल मंज़र करते हुए इसको, इसी तरीके इसका हुक्म भी जो कि तहारत है, ये एक। लेकिन वह मादकील, अगर यूं आप कहते हैं कि अन्ना असल इबादत लैस तंजील, असल बात ये तो था यहां तक था तंजीली, नाज़िल मंज़िल हुक्म वाक़ई तंजीली नहीं है, बल इंशा हिल्लियत मुस्तक़िल, बल्कि हिल्लियत मुस्तक़िल अगर इंशा किया जा रहा है तो फला युमकिनु अन नुनक्किह बिहा तहारत अल मदफू बिहा। तो यहां पे हम खरगोश के मदफू, खरगोश के पेशाब पायखाने की तहारत को हम साबित नहीं कर सकते। वल आखरो, दूसरी सूरत यह है कि इनायत ज़ायदा की अन युनज़्ज़ल अल अस्लो अवल इह्तिमालुल मुक़व्विम लहू मंज़िलतुल यक़ीन, असल को या उस एहतमाल को जो क़िवाम है असल का, उसको आप नाजिल बे मंजिले करार दें यकीन के। मतलब क्या? मतलब यूं है कि बेअन तुजअल तरीक़ियत फी मौरिदिल अस्ल, यानी तरीक़ियत को मौरिद असल में करार दिया जाए। यानी फर्क जिस कमा उद्दअ फिल इस्तिवाब, जिस तरह से इस सवाल में दावा किया गया इस सवाल में यकीन साबिक शक के लायक होता है, तो एहतमाल बका ये नाज़िल बे मंजिले यकीन बिल बका करार पाएगा। ये दावा किया गया है मिन क़िबल मुहक्किक नाइनी व सैयद उस्ताद, मुहक्किक नाइनी और हमारे उस्ताद यानी मुहक्किक खोई की जानिब से, अला फ़र्क़िन बैनहुमा, यानी इसके साथ कि इनके दरमियान फिर फर्क भी है। यानी एक तो दावा इनके दरमियान में मुश्तरक और मुहक्किक नाइनी सैयद खोई का इस पर इत्तफाक है कि इस्तिसाब में मजऊल तरीक़ियत है, लेकिन दोनों का इख्तलाफ इसमें है कि एहतमाल बका जब नाज़िल बेमंजिल यकीन है तो आया ये मंजिलतुल यकीन खुसूसियत अमली है या खुसूसियत अमली नहीं है। मुहक्किक नाइनी ने अव्वल को इख्तियार किया है, हैसो अन्नल अव्वला इख्तियार, अव्वल यानी मुहक्किक नाइनी ने इख्तियार किया है कि अन्नल मजऊल हुवल इल्म बिलिहाज मरहलतिल जरिल अमली फ़कत, ये खुसूसियत अमली रखता है। मजूल वो है यानी यकीन हो, इल्म हो, उस लिहाज से के मकाम अमली का मरहला है फ़कत। वसानी मुहक्किक खोई ने इख्तार किया अन्नल मजूल इल्म बिलिहाज काशिफियत, इल्म इस लिहाज से के काशिफ वाक़े है। बस जब ऐसे है तो फलम या बका अला मसलक के जाली तरीक़त फ़र्क़ुन बैन इस्ताबे वला मारात फिल मजूल अला राइल उस्ताद सैयद अल उस्ताद। तो इस बिना पे मुहक्किक खोई यानी जो कि सैयद सदर के उस्ताद हैं और मुहक्किक नाइनी के नजरिए के मुताबिक कोई फर्क नहीं इस्तिताब अमारात के, वो इस्तिताब अमारात जो मजऊल के अंदर होते हैं। वह युसम्मल अस्ल फी हालत बदल हालत बिल अस्ल अल मुहरदत, ये असल जो इस इनायत ज़ायदा के इस्तेमाल करने में है इसका नाम रखा है असल मुहरद। वह आदिल मुहरद एहराज वाक़ करती है, वह आदिल मुहरदियत कद यतरत्तब अलैहा, और इस मुहरदियत पर एतरादियत मुहरदियत पर मौकूफ होते हैं, मुतरत्तब होते हैं बाज़ुल फ़वाइद, बाज़ फ़वाइद मकाम तआरुज़ में, मकाम तआरुज़ अस्ल अमरा फ़ी तक़दीम असल अल मुहरद अला गैरिही, यानी असल मुहरद को गैर असल मुहरद पर मुक़द्दम किया जाएगा बेतबार इल्मन व हाकिम दलील असल अल अमली। चूंकि असल मुहरद इल्म आवर है, यकीन आवर है असल मुहरद, और असल दलील असल गैर मुहरद चाहे असल हो वो दलील आवर नहीं है, अला दलील असल अमल अमली अलबस अलमयात फी महल इंशाअल्लाह, तो इसकी बहस इंशाअल्लाह आने वाले मबहस में आएगी। वह होना का मान नाखर उसूल अमलियत मुहरदत है, यहाँ पे एक और माना भी है उसूल अमलिय मुहरदा का, वो माना यनसजमो मा तरीक़तना फी तमीज़ बिन अमारत और उसूल, वो माना मुंसजम है हमारी रविश के साथ जो हमने रविश बयान किया अमारत और उसूल के दरमियान। वह हुआ वो ये कि नकुल्लमा लूहिज़ फी जअलिल हुक्म ज़ाहिरी सुबूतन
अहमियतुल मुहतमल, यानी एक तरफ आप अहमियत एहतमाल को देखते हैं, दूसरी तरफ अहमियत मुहतमल को देखते हैं। अगर हुक्म ज़ाहिरी के अंदर जाल किया जाता है कि मुहतमल की अहमियत को देखा जा रहा है तो फहुवा अस्ल अमली, इसको असल अमली कहा जाएगा। और अगर आप कुव्वतुल एहतमाल ऐज़न, अब अहमियत मुहतमल को भी देखते हैं, कुव्वत एहतमाल को भी देखते हैं, तो फहुवा अमली मुरद, असल अमली मुरद है, कमा फी कायदे फराग, जैसे कायदे फराग ज़िम्मा में है। वइल्ला अगर ऐसा नहीं तो फिर फला, यानी असल अमली मुहर्रद भी साबित नहीं होगा। वल मुहर्रदियत बिहादल मुनाम, इस यानी ये जो नई जदीद माना की गई मुहर्रद, इस माना में फी कायदतुल फराग, कायदे फराग ला तजअलुहा हुज्जतन, मुहर्रदियत कायदे फराग को हुज्जत करार नहीं देती फी मुस्बतातिहा, यानी लवाजिमात गैर शरई लवाजिम अक़लिया में, इल्ला हाँ अन्ना इस्तिज़ारा मिन दलील कायदते, हाँ आप मुस्बतात को साबित करें, जाहिर करें कायदे से, ये कायदे फराग से ये तरतब अलैह बाज़ आसार है, इस पे मौकूफ बाज़ आसार आ सकते हैं, मिन कबील अदम शुमूल कायदे लिल मुरद इनदाम अल अमारत वल कश्फ निहायन। अच्छा, वो कहाँ पे, जब कायदा दलील कायदा शामिल ना हो उन मवारिद को जहाँ पे अमारा नहीं है, कश्फ न्याय नहीं है, वमिन हुना युकालो, यहीं से कहा गया कि बेआदम जरियान कायदत फराग फी मवारिदिल इल्म बेआदम तज़क्कुर अमल, के उस मकाम में कायदे फराग को आप जारी नहीं कर सकते जहां पे शख्स को इल्म तो है लेकिन वो फर्ज करें निस्यान हो गया है, भूल गया है या गफलत की हालत में है, तो वहां पे आप कायदे फराग को जारी नहीं कर सकते। मकाम अमल में ही अमल, जब किसी तकलीफ पे वो अमल करना चाहता है या किसी तकलीफ को अंजाम देना चाहता है। तो अल्लाह बिकराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।